Hello, I'm Dr. Shivan Chaudhary. Welcome to Clarity for UPSC. In this video, we're going to look at the GS3 paper of Mains 2024. We're going to look at four things in detail. We're going to look at the marks distribution, how difficult the paper was, questions aaye kahan se, what were the sources of the questions, and what is the learning that we have to take for our mains preparation in the future. So in this analysis, first we'll start with the marks distribution. अब ये बात मैंने आपको कई बार पहले भी बताई है that GS3 is not just economy. GS3 में ये 5 सब्जेक्ट हैं. First lot is security, second is agriculture, third is disaster management and environment, fourth is science and tech, fifth is economy, and पांचों से equal number of questions पूछे गए हैं. All of these are the question numbers in front of you. All of these 5 subjects have had 2 questions of 15 marks and 2 questions of 10 marks each. So 50 marks each for all 5 subjects. तो फर्स्ट लेसन तो ये है जो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पांचों सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. वी कैन नॉट rely on any one subject or ignore any one subject. So 50 marks each for all 5 subjects. Now, अब हम करते हैं सोर्सेज एंड क्वेश्चन एनालिसिस. विल गो इनटू इट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. एक एक क्वेश्चन हम डिटेल में देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए, वेयर दे वर फ्रॉम, एंड व्हाट आर द लेसन्स दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम. नाउ, since I don't know of any other one place source of where GS3 material can be found, what I've done is I've looked at each question and I'll honestly tell you if I covered it when I was teaching GS3. देखो मैंने GS3 बनाने में बहुत मेहनत करी थी, but there are still some things that I didn't cover and still some things that I did. But at least ये देख के हमें ये समझ आ जाएगा कि GS3 हमें पढ़ना कैसा होता है. So let's start. So the first lot is internal security and this is the first question. Now, the question says context and salient features of Digital Data Protection Act 2023. Now, as you can see, this is a direct current affairs driven question, but it's also a question जो आपको बहुत जगह और भी मिल जाएगा. Like you know, it's been in the news for a very long time, but ये GS3 में पूछा क्यों गया? ये GS3 में पूछा गया because it has a direct relationship with cyber security. And जब जस्टिस BN श्री कृष्णा रिपोर्ट आई थी, when this report had come, it was about digital data protection. ये जो जस्टिस BN श्री कृष्णा रिपोर्ट आई थी, this came in 2018. तो 2018 के जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें भी पर्सनल डेटा के ऊपर एंड रिकमेंडेशंस ऑफ दिस रिपोर्ट के ऊपर GS3 में 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था एंड सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट दिस ईयर. सो आई वुड से दिस इज अ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई हैड कवर्ड. राइट, सो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये मैं कहूँगा डुएबल क्वेश्चन है और हम ये पढ़ के गए हैं. राइट, वीव रेड दिस इन GS3, वीव रेड द एनालिसिस ऑफ द एक्ट, द salient features, the problems, etc. etc. Now, let's read the next question of internal security, which is from the subject of border management. Now, why was this asked this year? In my opinion, this was asked because a lot of news was there on the LAC, and अगर आपने वो news नहीं भी पढ़ी है तो भी ये एक normal question है. Question पढ़ते हैं. India has a long and troubled border with China and Pakistan, fraught with contentious issues. This is the introductory statement, it's not the question. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. So first part है issues and security challenges along the border. Give out development being undertaken under these areas as per BADP and BIM. तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर two questions have been asked actually. One is issues and security challenges on the border and the second part is BADP and BIM, and the context has to be given specifically with regards to China and Pakistan. तो मेरे हिसाब से अगेन आई वुड से दिस इज अ फेयरली डुएबल क्वेश्चन बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो हम पढ़ते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट में एंड इट वाज इन द न्यूज़ आल्सो एंड डायरेक्टली इन द सिलेबस आल्सो. तो यहाँ पर हमें इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के बारे में, जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स, चाइना बॉर्डर पे जो चैलेंजेस हैं वो हमें बताने, एंड वी हैव टू टेल इन डिटेल अबाउट द करंट पोजिशन ऑन द चाइना बॉर्डर ऑल्सो. अगर हम ये करंट सिचुएशन बताएंगे तो एटलीस्ट आई थिंक some value addition we can add to our answers. Other than this, there are broad challenges in border management that we read, and there is the border area development program as well as the BIM scheme which was asked in this question. I would say this is fairly doable. Now, next question. This is also a 15 marker. Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. अब ये question नहीं है और ऐसा नहीं है इसे हमें address नहीं करना. This is the introductory statement, right? ये एक introductory statement है, इसे हमें introduction में address करना है. But the actual question is measures that have been adopted at various levels to address security implications of social media. तो पहले क्या पूछा, security implications of social media के लिए क्या measures लिए गए हैं और any other remedies, मतलब एक sort of way forward भी हमें बताना है.
राइट? एंड दिस सिंस इट हैज़ बीन आस्क्ड कि वेरियस लेवल्स पे क्या चैलेंजेस हैं, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वेरियस लेवल पे क्या मेजर्स हैं, हमें चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया भी बताना पड़ेगा। नाउ दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस अगर हम देखेंगे तो सोशल मीडिया एंड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इज डायरेक्टली पार्ट ऑफ आर इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस, राइट? एंड इस पे पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बिफोर ऑल्सो, एंड एग्जैक्ट सेम थिंग कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बाय सोशल मीडिया क्या हैं, कैसे रेडिकलाइजेशन होती है सोशल मीडिया पे, क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, और क्या-क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है फॉर दिस। तो अगेन आई वुड से फेयरली डूएबल क्वेश्चन। Last question of internal security was explain how narco terrorism has emerged as a serious threat across the country. Suitable measures to counter narco terrorism. अब अगर हम सिलेबस देखें तो सिलेबस में एक टॉपिक है टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, राइट? टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में टेररिज्म पे अलग से भी क्वेश्चन है, लिंकेजेस पे भी क्वेश्चन है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अलग से भी है। एंड इफ यू लुक एट नार्को टेररिज्म, it is somewhere between terrorism and organized crime because it also talks of narcotics trafficking and narco terrorism in general, right? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है कि इंडिया में नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म कैसे हो रहा है और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं टू काउंटर नार्को टेररिज्म, राइट? Now, firstly, if you think about it, measures to counter narco terrorism are not that different from the measures to counter terrorism, but there are of course some specific things. तो ये जो measures to counter narco terrorism वाला part है यहाँ पर, ये I would say is a slightly difficult question because it would require you to think at various levels. You have to think in terms of propaganda, in terms of training, in terms of recruitment, in terms of execution of narco terrorism, as well as in terms of funding of narco terrorism. अब ये जो फंडिंग ऑफ नार्को टेररिज्म वाला पार्ट है, यहाँ पर अगेन मनी लॉन्ड्रिंग के पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे, इलीगल फाइनेंशियल फ्लोज के पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे, एंड नार्को टेररिज्म स्पेसिफिकली एज अ थ्रेट अक्रॉस द कंट्री। तो हमें पहले यहाँ पर नार्को टेररिज्म की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए और नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग इन इंडिया और कैसे वो टेररिज्म से लिंक्ड है ये भी पता होना चाहिए। सो एटलीस्ट दिस क्वेश्चन आई वुड से इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन वी वुड नीड टू नो द नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग इन इंडिया, what narco terrorism generally is, and how we are countering terrorism at various levels, international क्या measures हैं, and then we'll have to connect it a little bit to international measures and specifically write points only with regards to narcotic substances. तो ये मैं कहूँगा टफ क्वेश्चन है। तो अभी तक सिक्योरिटी के जो हमने क्वेश्चंस देखे, वी सॉ 4 क्वेश्चंस ऑफ सिक्योरिटी, 4 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑल ऑफ 50 मार्क्स ईच। आई वुड से दैट एटलीस्ट दिस सेक्शन वाज डूएबल, इतना कोई बहुत टफ सेक्शन नहीं आया है, बट डिपार्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल ट्रेंड, अगर आप कन्वेंशनल ट्रेंड देखोगे तो नक्सलिज्म जैसे टॉपिक्स जनरली हर 2 साल में रिपीट होते हैं। 2022 में आया था, 2024 में आना एक्सपेक्टेड था, बट इट डिड नॉट कम, व्हिच मीन्स इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2025। बट एटलीस्ट सिक्योरिटी में मैं ये कह सकता हूँ दैट अगर आप एक डॉक्यूमेंट अच्छे से डिटेल में पढ़ लें, राइट, तो एटलीस्ट सिक्योरिटी वाला पार्ट हैंडल हो सकता है, इट इज प्रिडिक्टेबल एंड द सेम थिंग्स कम ओवर एंड ओवर अगेन। अब let's move on to the next slot. This is the continuation of the same thing, right? Let's move over to the next slot, which is agriculture. अब agriculture में भी same चीज हुई। agriculture में there were 4 questions and total 50 marks के questions पूछे गए। तो अब agriculture के questions हम देखते हैं। सबसे पहला question, factors responsible for successful implementation of land reforms in some parts of the country. ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ये एक एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीट है। ये 2021 में मेरे ही मेंस में पूछा गया था, द फर्स्ट मेंस दैट आई वाज गिविंग, दैट हाउ डिड सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हेल्प इंप्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स। और यहाँ पर क्या पूछा गया, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। लैंड रिफॉर्म्स हमारा डायरेक्टली सिलेबस में है। लैंड रिफॉर्म्स जब हम पढ़ते हैं तो देर आर 3 मेजर थिंग्स विच इज जमींदारी एबोलिशन, टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड सीलिंग। इनमें से इनके सक्सेसेस के रीजंस एंड फैक्टर्स अलग हैं। लैंड रिफॉर्म्स इज ऑल्सो लिंक टू द आइडिया ऑफ कोऑपरेटाइजेशन बट नॉट डायरेक्टली। एंड कुछ मॉडर्न डे लैंड रिफॉर्म्स भी हम कर रहे हैं, जैसे कि कडास्ट्रल मैप्स गवर्नमेंट बना रही है, जिस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया, राइट? तो इस क्वेश्चन में व्हाट वाज रिक्वायर्ड वाज कि हमें चारों चीजें अलग से पता हो। वी शुड नो द अदर ऑल 4 थिंग्स, एंड इन चारों चीजों के हमें सक्सेस फैक्टर्स पता हो। बट अगर आपने सिलेबस ढंग से पढ़ा है तो आई थिंक दिस अगेन आई वुड से इज अ फेयरली डूएबल क्वेश्चन कि जमींदारी एबोलिशन के क्या एडवांटेजेस थे एंड हाउ इट वाज सक्सेसफुल, टेनेंसी रिफॉर्म कहाँ कहाँ सक्सेसफुल हुआ और कैसे हुआ, देन सिमिलर लैंड सीलिंग कैसे सक्सेसफुल हुआ और कहाँ हुआ,
एंड सिमिलरली विद द आइडिया ऑफ कोऑपरेटाइजेशन, बट कोऑपरेटाइजेशन उतना डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, राइट? बट ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट इस क्वेश्चन में एक चीज और हमें ऐड करने की जरूरत है, विच इज द मॉडर्न डे लैंड रिफॉर्म्स दैट वी आर डूइंग। मॉडर्न डे लैंड रिफॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में डालने के लिए, because if we add modern day land reforms in this answer, it will actually give more dimensions to our answer, right? So जैसे modern day land reforms like ownership and redistribution, the idea of women's rights and land reforms, the idea of land consolidation, the idea of digitization of land records, land use planning, ये सारी चीजें भी हम इसमें लिख सकते हैं, but they only have to be some specific part of the answer. Generally land reforms के जो 4 major components हैं वही लिखने हैं. Now this question, the next question that we are going to see is about the role of millets for ensuring health and nutritional security in India. अब ये question भी मैं कहूँगा कि काफ़ी doable question है. It has been expected since a long time because recently also the International Year of Millets was celebrated. But यहाँ पर important क्या है that we understand that this has two specific dimensions, health and nutritional security. अगर आप इन दोनों dimensions को देखो and you answer it properly, again I would say it's a fairly easy question. राइट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. सो एंड आई थिंक एनीथिंग समथिंग दैट वी ऑल स्टडी कि मिलेट्स का जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं इंडिया में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, और इसमें हम कुछ इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट हैज टेकन वो भी हम बता सकते हैं. नाउ अब ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये काफ़ी दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग दैट ऑन वाटर मैनेजमेंट, जस्ट ऑन वाटर मैनेजमेंट इन दिस पेपर अलोन देर आर 3 क्वेश्चंस. दिस इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम इन रीसेंट टाइम्स. अब ये सिर्फ क्वेश्चन हमारा वाटर मैनेजमेंट पे नहीं है, इट्स ऑन द एंटायर इरिगेशन सिस्टम, राइट? एंड द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट. अगर यहाँ पर आपको पता हो, एक मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट बनी थी ऑन वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया, जिसने अपनी 2016 में रिपोर्ट दी थी. उन्होंने काफ़ी डिटेल में इस बारे में बात की थी कि इंडिया में जो इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड है और इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइज्ड है, उसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है. दे हैड गिवन वेरियस रिकमेंडेशंस टू मेक द इरिगेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडिया बेटर, और उन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट हैज़ बीन डूइंग इरिगेशन रिफॉर्म. सो अगेन आई वुड से, अगर हम देखें इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, ये पूरा हमारे सिलेबस का भी पॉइंट है, एग्जैक्ट सिलेबस पॉइंट है. सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर हमने डिटेल में GS3 पढ़ा है तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज सॉल्वेबल. नाउ इस क्वेश्चन में वी नीड टू नो अबाउट द चैलेंजेस इन वाटर मैनेजमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट. जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, पावर सब्सिडीज के चैलेंजेस हैं, पॉलिसी गैप्स हैं, वो सारे हमें लिखने हैं. फिर क्या क्या हम कर सकते हैं टू बेटर इट, एज वेल एज द सेंट्रल स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, एज वेल एज द स्टेट लेड इनिशिएटिव्स लाइक मिशन काकतिया या जल युग शिविर अभियान वगैरह. नाउ इफ यू नो सम केस स्टडीज, अब मैं आपको ये और बताता हूँ, दिस इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ वेयर द क्वेश्चंस आर फ्रेम फ्रॉम. मैंने ये चारों केस स्टडीज जो टॉप पे लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये क्यों डाली हैं? ऑल ऑफ दीज 4 केस स्टडीज आर फ्रॉम दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे. और ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का डिस्कशन है, जो काफ़ी डिटेल में यहाँ पर किया गया है ना, मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, बट अगेन दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन अ लॉट ऑफ डिटेल इन दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे इटसेल्फ. तो इकोनॉमिक सर्वे मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है कि या तो आपको कोई पढ़ा दे, इट्स अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट, बट इफ यू आर रीडिंग ऑन योर ओन, इकोनॉमिक सर्वे एटलीस्ट डिटेल में पढ़ना चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन आई वुड से इज डायरेक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम what has been discussed in the economic survey this year. ये चारों case studies, even this automated irrigation system etc. is from the economic survey, and if you write points like this, generally हमें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं. आगे देखते हैं. Elucidate the importance of buffer stocks in stabilizing agricultural prices in India. Challenges associated with storage of buffer stocks, discuss. Again, storage of agricultural produce डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट है. इसमें एक बफर स्टॉक्स का जो टॉपिक है, इस पे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, और बफर स्टॉक्स का टॉपिक वी रीड व्हेन वी रीड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड हाउ इट इज रन. पीडीएस पे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, पीडीएस से रिलेटेड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे भी क्वेश्चन आए हैं. तो अगेन आई वुड से दैट एटलीस्ट दिस क्वेश्चन इज डूएबल. द सेकंड पार्ट इज वेरी डूएबल. द फर्स्ट पार्ट एक्चुअली रिक्वायर्स यू टू रीड एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, कि एग्रीकल्चरल प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन होती है और कैसे बफर स्टॉक से उसको स्टेबलाइज किया जाता है. बट कभी कभी बफर स्टॉक्स कैन ऑल्सो बिकम अ रीजन फॉर एग्रीकल्चरल इन्फ्लेशन. एंड एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, दिस टॉपिक टेल्स यू हाउ करंट अफेयर्स आर यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस. आप देखोगे इसी पेपर में फूड इन्फ्लेशन पे भी एक क्वेश्चन है.
एंड फूड इन्फ्लेशन एज एन इशू इज लिंक टू द इशू ऑफ बफर स्टॉक्स। जब हम इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर फूड इन्फ्लेशन पर भी डिस्कशन है। सो यू विल सी दैट इन द सेम पेपर टू क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक हैव बीन आस्क्ड। ये जनरली नहीं होता था, probably happening for the first time this time. Now, importance of buffer stocks in stabilizing agricultural prices, यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्राइस पॉलिसी में बफर स्टॉक्स कैसे यूज होते हैं वो हमें देखना होगा, राइट। एंड देन जनरली द इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक वी नीड टू नो। एंड इसमें एक शांता कुमार कमिटी बनी थी। दिस शांता कुमार कमिटी हैड रिकमेंडेड सम चेंजेस दैट वी नीड टू डू टू मेक दिस बफर स्टॉक मैनेजमेंट बेटर। अब जैसे आप क्वेश्चन देख के मे बी यू थिंक दैट यहाँ पर सिर्फ चैलेंजेस ही पूछे गए हैं, बट वी नेवर एंड विद दीज चैलेंजेस। कंक्लूजन वे फॉरवर्ड में यहाँ पर शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशंस लिखना और थोड़ा बहुत उसके बारे में ये बताना कि these are the extra things that could have been done or what are the way forward that would help. So again, but I would say fairly doable question, करने लायक question था। Now this finishes our discussion of agriculture. तो अगर मैं agriculture की बात करूं तो agriculture again as we were seeing 5 questions were asked, sorry 4 questions were asked for 50 marks, जैसे कि बाकी सारे subjects भी वैसे ही हैं। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस वर डुएबल क्वेश्चंस। तो एग्रीकल्चर और सिक्योरिटी तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि इस बार डुएबल है, बिकॉज सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत बाउंसर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मे बी द नार्को टेररिज्म क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी, बट अदर देन दैट आई थिंक इट्स फेयरली डुएबल। अब आते हैं हम स्लॉट 3 विच इज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंट कंबाइंड। डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट अगेन देर आर 50 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, how is it determined, various elements of a resilience framework, global targets of Sendai framework for disaster risk reduction। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज है जो हम पहले पढ़ते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क पे भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, बट ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्यों है? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट इसलिए है, इट्स डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज आप देखो डिजास्टर रेजिलियंस भी पूछ लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस भी पूछ लिया, एलिमेंट्स भी पूछ लिए और ग्लोबल टारगेट्स भी पूछ लिए। इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल कंडीशंस में ऑर्गेनाइज करना मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट टास्क, तो उसलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है। अदरवाइज अगर हम डिजास्टर रेजिलियंस की बात करें तो डिजास्टर रेजिलियंस इज समथिंग वी रीड विद रेफरेंस टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि कैसे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज डन। उसमें जैसे ये मैंने 6 घंटे की 9 घंटे की जो क्लास ली थी यूट्यूब पे, उसमें भी बताया था that when you face a question on disaster risk reduction, you can use the 6 main frameworks of the national disaster management plan। एंड अगर आप सेंडाई फ्रेमवर्क भी देखोगे तो सेंडाई फ्रेमवर्क की जो थर्ड प्रायोरिटी है दैट इज एक्चुअली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस। तो ये लिंक तो है, इस क्वेश्चन में कंटेंट होने में प्रॉब्लम नहीं है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है दैट हाउ विल वी ऑर्गेनाइज दीज 4 सब पार्ट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। ये स्ट्रैटेजीज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की हम पढ़ते ही हैं रेजिलियंस के लिए, बट दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशनली डिफिकल्ट क्वेश्चन टू हैंडल फॉर श्योर। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी 15 मार्कर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा, फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। डिस्कस 1 कॉजेस, फीचर्स ऑफ 2 ऑफ सच मेजर फ्लड्स इन द लास्ट 2 डेकेड्स। तो कोई लास्ट 2 डेकेड्स के एटलीस्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए। फीचर्स तो देखिए हर अर्बन फ्लड के मोर और लेस आर गोइंग टू बी द सेम, बट इफ आई डोंट नो एग्जाम्पल्स हियर आई कैन नॉट राइट दिस पार्ट। देन आई नीड टू राइट पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स इन इंडिया दैट एम एट टैकलिंग सच फ्लड। तो 3 पार्ट है क्वेश्चन के। कॉजेज, कोई 2 मेजर फ्लड्स जो रिसेंटली हुई हो इन द लास्ट 2 डेकेड्स, मीन्स ज़्यादा रिसेंट तो नहीं, हम थोड़ी पुरानी फ्लड भी यूज कर सकते हैं, बट 2 अर्बन फ्लड्स, उनके हमें फीचर्स बताने, एंड पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स अबाउट टैकलिंग अर्बन फ्लडिंग। तो अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, अर्बन फ्लडिंग पे पहले भी क्वेश्चन आए हैं, अर्बन फ्लडिंग इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैं कहूंगा अगेन इट इज अ फेयरली डुएबल क्वेश्चन, एंड पार्ट्स भी 3 ही हैं, 15 मार्कर क्वेश्चन है तो डुएबल है। इट इज ओनली दैट कॉजेज जनरली हमें पता होते हैं, ये रीसेंट फ्लड्स में हमें हमारे पास अगर एग्जाम्पल्स याद नहीं होंगे, जितने रीसेंट एग्जाम्पल्स दोंगे उतना बेटर है, बट इफ यू डोंट नो दीज एग्जाम्पल्स देन इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। एंड जो हमारा मेजर्स और पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो तो हम उन्हीं 6 कंपोनेंट्स के बेसिस पे लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिस्क मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन में हाउएवर देयर वाज मोर फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, देयर वाज मोर फोकस ऑन द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स। तो पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स में हमारा फोकस ज्यादा रहेगा ऑन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, हमारा फोकस ज्यादा रहेगा ऑन नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स।
तो ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा फेयरली डुएबल क्वेश्चन है, अगर आपको वो एग्जाम्पल्स आते हैं तो। नाउ नाउ लेट्स मूव ऑन टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट सेम है, बट इस बार एनवायरनमेंट के 2 ही क्वेश्चन है 10 मार्क्स, और डिजास्टर मैनेजमेंट के दोनों क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इसी पेपर में 2 बार पूछा गया है हाउ, और अबाउट इसी पेपर में एक्चुअली 3 बार पूछा गया है अबाउट वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अब दोबारा क्वेश्चन है वाटर मैनेजमेंट पे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया। अब ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, इसे हमें इंट्रोडक्शन में एड्रेस करना है। वेरियस मिटिगेशन मेजर्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में बताना होगा हाउ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। फिर हमें बताना होगा कि कैसे इसको रोका जा सकता है और गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए क्या-क्या कर रही है। अगेन आई वुड से दिस इज समथिंग दैट वी डू जनरली रीड। एक्सपेक्टेड नहीं है कि वाटर पे इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट दिस क्वेश्चन इज इन माय ओपिनियन डुएबल। इसमें हमें अगर थोड़ा मैप बना के भी दिखाना हो अबाउट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस तो हम दिखा सकते हैं। सरफेस वाटर पोल्यूशन के जो हम रीजंस पढ़ते हैं उसमें मेजर रीजन हमारा इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज रहता है। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और वे फॉरवर्ड में और क्या क्या किया जा सकता है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब एनवायरमेंट का सेकंड क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस स्लॉट, इज what role do environmental NGOs and activists play in influencing environmental impact assessment outcomes for major projects? यहां तक तो है ये क्वेश्चन आसान, ये है मुश्किल पार्ट। साइट 4 एग्जांपल्स विद ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देखो मैं खुद GS3 पढ़ाता हूँ, अगर मुझे ये क्वेश्चन लिखना हो पेपर में तो मैं भी नहीं लिख सकता, बिकॉज 4 एग्जाम्पल पता होना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के। अब मैं पढ़ लूंगा ऑब्वियसली, अब हम सब पढ़ लेंगे, बट ये मेरे हिसाब से काफी डिफिकल्ट बाउंसर क्वेश्चन है, बिकॉज ये जो 4 एग्जाम्पल्स पूछ लिए गए हैं, दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल, राइट। EIA जनरली हम पढ़ते हैं, और EIA के हमें ये भी पता है कि स्टेप्स क्या हैं। उसमें जो पब्लिक कंसल्टेशन वाला स्टेप है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनता है, फिर रिव्यू एंड मॉनिटरिंग होती है, कंप्लायंस होती है, वहाँ पर NGOs का रोल है, ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं। बट 4 एग्जाम्पल देके डिटेल्स लिखना इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू राइट ऑल्सो। आई थिंक दिस वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑल्दो मे बी वी कैन राइट सम थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कि हाँ एनवायरमेंट का रोल रहता है पब्लिक कंसल्टेशन में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और EIA की प्रोसेस क्या है, बट मेरे हिसाब से दिस इज अ टफ क्वेश्चन। तो अब पहले हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट में जो 4 क्वेश्चंस थे, व्हाट इज द overall outlook. So I would say the 3 questions were fairly doable. So Sendai framework question, urban flooding question, and the question on river water pollution was doable. The question that was not doable was EIA. मेरे हिसाब से ये टफ क्वेश्चन है। Of course doesn't mean you have to leave it blank, आपको प्रोसेस पता है, बट EIA वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स बताना मेरे हिसाब से टफ है। तो इस पेपर में कुछ अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं। आई थिंक दिस EIA क्वेश्चन इज द फर्स्ट बाउंसर दैट वी हैव सीन सो फार। बाकी तो मैं कहूँगा ये डुएबल पेपर है अभी तक। आगे देखते हैं। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक भी सेम, देर आर 4 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स जैसे बाकी सबके लिए है। देखते हैं साइंस एंड टेक में क्या पूछा गया। What is the present world scenario of IPR with respect to life materials? I would say this is a tough question because आपको अगर life materials नहीं पता that it relates to living modified organisms, यहाँ पर आपको कार्टेजना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ट्रिप्स अग्रीमेंट, थोड़ा बहुत TKDL के बारे में भी लिखना है, तो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज सेकेंड इन द वर्ल्ड टू फाइल पेटेंट्स, फ्यू हैव बीन कमर्शियलाइज्ड, रीजंस बिहाइंड लेस कमर्शियलाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इंडिया में जो IPR रिजीम है, पेटेंट्स फाइलिंग है, उनमें क्या इश्यूज हैं विद रिगार्ड्स टू अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ आर पेटेंट्स नॉट गेटिंग कमर्शियलाइज्ड इनफ। ये कमर्शियलाइज नहीं हो रहे हैं पेटेंट्स, इस वजह से दिस इज अ टफ, इस वजह से दिस इज द चैलेंज, एंड इसके क्या रीजंस हैं एंड हाउ इफ द रीजंस हैव बीन आस्क्ड वी आल्सो हैव टू राइट कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगेन आई वुड से दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑल्दो हम पढ़ते हैं ये चीज़, राइट, इट्स नॉट समथिंग दैट वी डोंट रीड। वी रीड अबाउट TKDL, नगोया प्रोटोकॉल, ट्रिप्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, एंड दीज आर ऑल्सो आई वुड से थिंग्स दैट आर डूएबल। बट IPR इश्यूज भी इंडिया में हमने पढ़े हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली कमर्शियलाइजेशन के टॉपिक्स देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है और एक डिफिकल्ट टू राइट क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक के आप चारों ही क्वेश्चन इस बार देखोगे, एंड आई एम अ डॉक्टर, आई हैव टॉट साइंस एंड टेक, मैं खुद कह रहा हूँ साइंस एंड टेक इस बार काफ़ी डिफिकल्ट था। इट इज़ अ डिफिकल्ट पेपर टू अटेम्प्ट इन साइंस एंड टेक एटलीस्ट। साइंस एंड टेक में आगे देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखते हैं। टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट RFID एंड फास्टैग जो अब हम यूज करते हैं। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, proposed changes that will make this process seamless, would this transition carry any potential hazards? Now I would say this is again a bouncer question, जैसे हमने EI वाला क्वेश्चन देखा था, ये भी मैं कहूँगा एक बाउंसर क्वेश्चन है, बिकॉज आप फिर भी फर्स्ट यहाँ तक आप ये क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हो, बट अगर आपको ये चेंजेस नहीं पता, राइट, एंड अगर आपको चेंजेस नहीं पता तो आप ये वाला पार्ट नहीं बता पाओगे और फिर आप ट्रांजिशन भी नहीं बता पाओगे, राइट। एंड ऑल्सो आई वुड से हियर दैट मैं आई एम एडमिटिंग ओपनली दैट दिस इज, मैं खुद पढ़ाता हूँ GS3, दिस इज नॉट समथिंग आई टॉट ऑल्सो। ये काफ़ी रीसेंट करंट अफेयर्स में से है और मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं था। सो दिस इज अ टफ क्वेश्चन टू राइट। इट इज ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन टू राइट बिकॉज you look, it has 5 parts. So we have to write about technology being employed, advantages, limitations, proposed changes, transition के hazards and technically एक 6th part भी आएगा जिसमें हमें इस transition के hazards का future way forward लिखना होगा। तो structurally writing this question and writing this question in terms of content is both difficult. So again I'd say this is the second bouncer question in my opinion in GS3 this year. आगे चलते हैं। अब ये देखो फिर से वाटर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन। World is facing an acute shortage of clean and safe fresh water. What are the alternative technologies which can solve this crisis? Briefly discuss any 3 such technologies citing their key merits and demerits. अब अगर मैं कहूं, this question is also a difficult question to write, right? But इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है with some logic. How can we write it? अब मेरे हिसाब से मेंस में इतना दिमाग आपका चले बहुत मुश्किल है, बट फ्रेश वाटर यूज इज ऑल्सो डन। अगर आप यूज देखो इसका तो इरिगेशन में है, इसका यूज ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में है, इसका हाउस होल्ड यूजेस में है, और उस बेसिस पे थिंग्स लाइक ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो केस स्टडीज में आपको इकोनॉमिक सर्वे से दिखा रहा था इरिगेशन की, वो भी यहाँ यूज की जा सकती हैं। इट इज स्टिल पॉसिबल टू राइट समथिंग हियर, बट ऐसे 3 एग्जैक्ट टेक्नोलॉजीज पता होना, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होना, अगेन आई वुड से इज अ टफ बाउंसर क्वेश्चन दिस ईयर। ये भी मैं कहूँगा एक टफ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इसमें आप कुछ लिख नहीं पाओगे। अगर आप वाटर मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ के गए हो इस साल तो आपका बहुत फायदा है, अगर आप वाटर मैनेजमेंट नहीं पढ़ के गए हो तो बहुत नुकसान है। बट येस, आई वुड से दिस इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट। नाउ दिस वॉज probably the most surprising question for me this year. What are asteroids? Fairly simple. How real is threat of them causing extension of life? What strategies have been developed to prevent such a catastrophe? काफी recent news है ये, and it is also not news जो हम expect करते हैं कि UPSC मेंस में हमसे पूछेगा। बट एस्टेरॉइड्स का कितना रियल है थ्रेट ऑफ कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ, दिस इज समथिंग विच अगेन आई वुड से इज अ बाउंसर क्वेश्चन। साइंस एंड टेक इस बार डेफिनेटली पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा बहुत लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन में, स्पेशली जैसे एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं ये हमें पता होता है, हाउ रियल इज द थ्रेट ये हमें पता होता है। यहाँ पर भी अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है तो देर आर थिंग्स लाइक डार्ट मिशन एक्सेट्रा जो हमें पता है, बट अगेन आई वुड से वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट इन द मेन्स हॉल। तो दिस इज द फोर्थ एंड प्रोबेबली द लास्ट बाउंसर क्वेश्चन आई वुड से दैट हैज बीन आस्क्ड। 4 बाउंसर क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं डेफिनेटली। अब साइंस एंड टेक की अगर हम ओवरऑल बात करें, मेरे हिसाब से जो GS3 में अगर लोगों का स्कोर लो रहता है वो साइंस एंड टेक की वजह से ही रहेगा। साइंस एंड टेक के चारों ही क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, एंड फॉर समवन हु हैज स्टडीड अ लॉट ऑफ साइंस एंड टेक आई वुड से दैट इवन फॉर मी राइटिंग दीज क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। तो अगर आपको ये मुश्किल लगे हैं तो आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव एवरीवन विल फाइंड डिफिकल्ट, राइट। जितने लोग मेंस दे रहे हैं सबको मुश्किल लगेगा। एग्जाम हॉल्स में क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल है, और ऐसे क्वेश्चंस जनरली कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। जैसे अगर ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं तो सबका स्कोर थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। बट दिस टेल्स अस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो कि करंट अफेयर्स जो है इट हैज टू बी रेड वेरी क्लोज टू द एग्जाम ऑल्सो, एंड साइंस एंड टेक में आई थिंक अ लिटिल बिट ब्रॉडर कवरेज इज रिक्वायर्ड। इस बार या तो ये अनॉमली है या नहीं वो नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, बट मे बी अ बिट ब्रॉडर कवरेज इज रिक्वायर्ड। थोड़ी और प्रीलिम्स की रिवीजन साथ में करनी है, बिकॉज ये क्वेश्चन हम प्रीलिम्स के लिए जरूर पढ़ते हैं कि एस्ट्रॉइड के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं। वी ऑल्सो रीड अबाउट the idea of FASTag and RFID for prelims. तो थोड़ा सा इस बार साइंस एंड टेक को मेरे हिसाब से they have made tougher. Now let's come to the last plot which is economy. Economy again same pattern, 4 questions 50 marks. पहला क्वेश्चन है pattern and trend of public expenditure on social services in the post reforms period in India.
मतलब पूछा है कि आफ्टर 1990s हाउ हैज आर एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज बीन। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे देर हैज बिन अ राइजिंग ट्रेंड एटलीस्ट इन द रिसेंट ईयर्स ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट हैज बीन एक्सपेंडिंग and to what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth। तो एक क्वेश्चन का कंटेंट हमारे पास हो बट आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट इन द एग्जाम हॉल बिकॉज व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर इज दैट पहले आप ट्रेंड बताओ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, फिर आप कहो कि दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ के हिसाब से जो हमारा एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज इन कॉन्सोनेंस। तो हाँ, कहीं पर तो ये इन कॉन्सोनेंस है, हम ठीक जा रहे हैं, बट देर आर सम चैलेंजेस दैट वी नीड टू फुलफिल एंड देन देर इज ऑल्सो सम वे फॉरवर्ड दैट वील हैव टू सजेस्ट। तो मेरे हिसाब से एग्जाम हॉल में लिखना ये क्वेश्चन डेफिनेटली मुश्किल है। ऑल्दो इसका कंटेंट कि हमारे क्या नीड है इंक्लूसिव ग्रोथ पे, हमारा एक्सपेंडिचर पैटर्न कैसा रहता है एक्सेट्रा, और हमारे मेजरली ऑब्जेक्टिव्स एंड पैरामीटर्स क्या हैं फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ की स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये हमें जनरली पता रहता है, बट टू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट आई बिलीव इज अ डिफिकल्ट थिंग। नाउ फूड इन्फ्लेशन पे पहले उन्होंने बफर स्टॉक से रिलेटेड पूछा। सेकंड क्वेश्चन इन इकोनॉमी इज कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया, effectiveness of monetary policy of RBI to control this type of inflation, directly asked from the economic survey। पढ़ के गए हैं तो लिख पाएंगे एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी रीड फॉर प्रीलिम्स। हम प्रीलिम्स में भी ये चीज़ पढ़ते हैं, राइट एंड हमें ये एनालिसिस भी पता होता है प्रीलिम्स में कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है इट इज ओनली अ सप्लाई साइड मेजर और इट इज अ डिमांड साइड मेजर। इट कैन चेंज आवर डिमांड ऑफ फूड बट इट कैन नॉट चेंज द सप्लाई ऑफ फूड, राइट। वो सप्लाई ऑफ फूड चेंज करने के लिए जो मेजर्स हैं वो दूसरे हैं। So that is something that we have to write here and I think this at least is a doable question। इसका कंटेंट भी हमारे पास होता है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में था, that's why I covered it also and I feel it this question at least is fairly doable। now अब ये क्वेश्चन भी मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ 4 लेबर कोड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया, व्हाट हैज बीन द प्रोग्रेस सो फार इन दिस रिगार्ड। अब देखो लेबर कोड्स एक्चुअली केम इन 2020 एंड यहाँ पर लेबर कोड्स नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पर उनके ब्रॉडली 4 लेबर कोड्स के ब्रॉडली मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर जो हम पढ़ते हैं, हाउ लेबर रिफॉर्म इज हैपनिंग, उससे रिलेटेड है और उसमें अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है। तो स्ट्रक्चरल लेबर रिफॉर्म इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट हियर। इट इज not something that is directly about the labor codes। labor codes are a part of our labor market reforms, right। तो अगर हम देखें हमें लेबर कोड्स के बारे में पता होना चाहिए एंड आई थिंक वी ऑल समथिंग दैट वी रेड इवन फॉर प्रीलिम्स, जो 4 लेबर कोड्स हमें पढ़े हैं, बट जो स्ट्रक्चरल लेबर मार्केट रिफॉर्म्स है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। मैं कहूँगा एग्जाम हॉल में लिखना इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट है, बट सिंस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड द पार्ट द पार्ट्स आर क्लियरली डेलिनेटेड, तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगेन कंटेंट वाइज ऑल्सो आई वुड से स्ट्रक्चरल लेबर रिफॉर्म्स एंड अगर आपको ये पता है तो ठीक है, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन टू राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सपेंडिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया, उड़ान स्कीम एंड इट्स अचीवमेंट। तो स्पेसिफिकली एक स्कीम पूछना जनरली ये नहीं होता था, बट दिस ईयर इट हैज़ बीन डन इन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक से पूछा गया है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लिखा हुआ है एयरवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, रोड्स एक्सेट्रा, तो डायरेक्टली एयरपोर्ट्स पूछ लिया गया है। उड़ान कोई ऐसा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं था, इकोनॉमिक सर्वे में इसका मेंशन ज़रूर है, but I think it is something that we do read for prelims also and I would say this is a doable question because expanding regional air connectivity आप generally भी लिख सकते हो। अगर आपको वैसे ये टॉपिक पढ़ना है एंड वेयर आई कवर्ड इट फ्रॉम वॉज नीति आयोग स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया, जहाँ पर ये बहुत ही डिटेल में बताया गया था कि इंडिया के एविएशन सेक्टर में क्या क्या है और उड़ान में क्या क्या करा है एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प। सो दिस इज आई वुड से दिस इज समथिंग दैट इज एटलीस्ट अ डूएबल क्वेश्चन। तो अब हमने सारे जीएस3 के क्वेश्चंस देख लिए, वी हैव सीन ऑल 20 क्वेश्चंस ऑफ जीएस3। तो क्या लेसन्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस पेपर। फर्स्टली ये तो आई थिंक अब हम सबको समझ आ रहा होगा कि जीएस3 बल्कि है। जीएस3 में जो मैंने कंटेंट बनाया है उसमें भी बहुत बार लोग कहते हैं कि इट्स अ बल्कि कंटेंट, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, बट इट इज़ अ बल्कि इट इज़ अ बल्की पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल 5 सब्जेक्ट्स हैव इक्वल वेटेज, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है एंड द क्वेश्चंस आर आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर अनकन्वेंशनल।
तो इसलिए मैं कहूँगा कि GS3 एटलीस्ट हमें पढ़ना तो डिटेल में पड़ेगा ही। इट इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेशन बेस्ड पेपर। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। जैसे EIA में भी एग्जाम्पल्स पूछ लिए। EIA हम जनरली पढ़ते हैं, कवर भी किया है, बट एग्जाम्पल्स पूछ लिए। तो डिटेल रीडिंग इन GS3 इज नाउ बिकमिंग इंपॉर्टेंट। होलिस्टिक कवरेज ऑफ सिलेबस एंड करंट अफेयर्स एज वेल। करंट अफेयर्स कैन गिव अस अ हिंट, बट आप देखोगे कि कई क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स का कोई लॉजिक नहीं है, और है भी तो क्वेश्चंस इसलिए इतने डिफिकल्ट हैं कि ऊपर ऊपर से करंट अफेयर्स पढ़ के बात नहीं बन पाती। तो करंट अफेयर्स एक तो हमें लास्ट मंथ तक पढ़ने, एंड वी नीड टू कवर इट होलिस्टिकली। देन वन मोर लेसन दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस पेपर, और मैं आपको ये आगे भी दिखाऊंगा कि GS3 सिर्फ GS3 तक लिमिटेड नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि GS1 में, GS2 में और GS4 में भी GS3 के क्वेश्चंस आए हैं। एंड इवन इन दिस पेपर आपने देखा होगा दैट थिंग्स हैव बीन इंटरलिंक्ड। जैसे कि वाटर मैनेजमेंट, जो हम इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज जो हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, उसकी लिंक टेक्नोलॉजीज पूछ ली। तो जो अब शार्प बाउंड्रीज होती हैं, दे आर इवेपोरेटिंग। तो हमें थोड़े इंटरलिंक तरीके से आगे चल के पढ़ना है, राइट। डिफिकल्टी ऑफ दिस पेपर आई वुड से इज मॉडरेट। ओवरऑल आई वुड से कि लास्ट ईयर से रिलेटिवली सिमिलर लाइंस पे पेपर है। देर आर सम अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस एवरी ईयर, इस साल भी हैं, बट हाँ इस बार कुछ वियर्ड बात यह है कि साइंस एंड टेक में ही सारे अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछ लिए गए। आई डोंट नो व्हाई। साइंस एंड टेक वाज प्रीटी अनकन्वेंशनल दिस ईयर, बाकी पार्ट ऑफ द पेपर वाज फेयरली डूएबल, राइट। तो मैं कहूँगा कि मॉडरेट डिफिकल्टी है, स्लाइटली टफर साइड पे ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड डेफिनेटली देर आर एटलीस्ट 4 अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस which people would find difficult to write in the exam hall. Now let us come to understanding कि GS3 is not limited to GS3। ये मैंने आपको बताया था कि the boundaries between various papers are evaporating, सब्जेक्ट्स के बीच में भी और पेपर्स के बीच में भी। तो अब मैं आपको कुछ GS1 और GS2 के क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो डायरेक्टली GS3 के क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए GS1 का, डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। इस क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट हम छोड़ देते हैं, जब मैं GS1 का डिटेल में डिस्कशन करूंगा तब यहाँ बात करेंगे। बट वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये एक्चुअली जेंडर बजटिंग का अगर आपने कंटेक्ट पढ़ा है एंड यू रेड अबाउट व्हाई जेंडर बजटिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाई जेंडर कंसर्न्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन वी आर बजटिंग फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इट बिकम्स समथिंग दैट्स वेरी इजी फॉर अस टू राइट। तो जेंडर बजटिंग अगर हमने पढ़ा है और जेंडर बजटिंग का हमने फ्रेमवर्क पढ़ा है, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स इजी। ये GS1 का क्वेश्चन है, बट इससे GS3 के कंटेंट से काफी हेल्प होती है। Second, in dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government, NGOs and private sector would be most productive? अब ये क्वेश्चन GS1 में आया है, which is absolutely unexpected। आता तो ये क्वेश्चन GS2 में आता जहां डेवलपमेंट पॉलिसी की बात हुई है, या GS3 में आता जहां डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की बात हुई है, बट यहां पर क्या है, डेवलपमेंट के इश्यूज GS1 में पूछ लिए गए। तो अगेन द बाउंड्रीज बिटवीन द पेपर्स हैव स्टार्टेड टू इवेपोरेट, राइट। अब ये क्वेश्चन अगर हमने इंक्लूसिव ग्रोथ में इंडिक मार्केट इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है, राइट, अगर इफ वी हैव रेड अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक्स, व्हाई गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन बिजनेस, प्राइवेट सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स और एनजीओज और एनपीओज का क्या रोल है। अब ये चीज इंक्लूसिव ग्रोथ में हम पढ़ते हैं GS3 में इकोनॉमी में, बट पूछा कहाँ, GS1 में। तो अगेन द बाउंड्रीज आर बिकमिंग वेरी ब्लर्ड। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया GS2 में IR में। The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain as a strategical counter to China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स देके ये बताना है कि इंडिया को ऑल्टरनेटिव बनाया जा रहा है टू चाइना सप्लाई चेन डोमिनेंस, राइट। हाउ पीपल आर नाउ मूविंग आउट ऑफ चाइना, coming to India, and this is being done by the West to counter China's political and economic dominance. The major point that has to be written here is China plus one. And China plus one पे इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डिस्कशन है, राइट। तो चाइना प्लस वन एक्चुअली हम कहाँ पढ़ रहे हैं, GS3 में पढ़ रहे हैं। पूछा कहाँ है, GS2 के IR में। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर, आपको सिर्फ चाइना प्लस वन नहीं लिखना, इसमें वेस्ट के बारे में भी लिखना है, स्ट्रेटेजिक काउंटर के बारे में भी लिखना है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ यू नो अबाउट चाइना प्लस वन, इफ यू रेड चाइना प्लस वन इन डिटेल, you will understand how to write this answer, right? So again, this is something that I would say has the boundaries between the papers are slightly evaporating. अब ये क्वेश्चन देखो,
terrorism has become a significant threat to global peace and security. Effectiveness of UNCTC and associated bodies in addressing and mitigating the threat at international level. ये क्वेश्चन पूछा कहाँ? GS2 में. टेररिज्म सिलेबस में कहाँ है? GS3 में. अगेन द बाउंड्रीज बिटवीन द पेपर्स हैव इवेपोरेटेड अ लॉट. अब ये जो क्वेश्चन है टेररिज्म वाला, इसके लिए अगर आपने GS3 में टेररिज्म के इंटरनेशनल मेजर्स अच्छे से नहीं पढ़े तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर आपको यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी जो इंटरनेशनल मेजर्स हैं वो कैसे काम करती है, व्हाट आर द रेजोल्यूशंस दैट द यूएन हैज टेकन अगेंस्ट टेररिज्म, व्हाट इज द दिल्ली डिक्लेरेशन which has been taken by the counter-terrorism committee recently to counter the idea of terrorism globally and global financial flows and the use of technologies by terrorists, ये आपको पता होना चाहिए. तो अगेन GS2 का पेपर का क्वेश्चन, बट कंटेंट कहाँ का है? GS3 का. अब हमें GS4 में तो डेफिनेटली नहीं लगता कि GS3 आ सकता है. इवन इन GS4 देयर हैव बीन क्वेश्चंस दैट हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम GS3 कंटेंट. अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको GS3 का कंटेंट लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको लिखना GS4 में तो स्पेसिफिकली बहुत एथिकल पर्सपेक्टिव से है. यू हैव टू यूज एथिकल कीवर्ड्स, राइट? जो एथिक्स की थ्योरीज हैं उनके बारे में लिखना है. बट मैं आपको अब GS4 में भी काफी सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो अगर आपने GS3 ढंग से पढ़ा है तो आपको बहुत हेल्प होगी. एंड दिस इज अ रिकरिंग थीम. ये मैं आपको अक्रॉस पेपर्स दिखाऊंगा कि जब मैं आगे GS1 GS2 भी एनालाइज करूंगा, आई विल शो यू कि बहुत ऐसे इंटरलिंकेज है. जैसे ये क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल डिसीजन मेकिंग इज अ डिबेटेबल इशू. critically examine the statement from ethical point of view. So ethical challenges and ethical advantages of artificial intelligence as a dependable source for administrative decision making. अब अगर आपने AI ही डिटेल में नहीं पढ़ा तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट ऑफ AI के क्या क्या इश्यूज हैं, बायस कैसे आता है, वहाँ वहाँ कैसे ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है, वहाँ क्या एथिकल कंसिडरेशंस हैं. अब ये है GS3 का कंटेंट बट यूज हो रहा है GS4 के क्वेश्चन में. ये देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 13 से आंसर हो सकता है. क्या पूछा है? GS4 का क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर आउटकम्स ऑफ ह्यूमन ग्रीड, indicating the direction in which extinction of organisms including human beings is heading towards loss of life on earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between society and environment? लिखना एथिक्स के पर्सपेक्टिव से है, एथिकल बातें लिखनी है. बट इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 13 में एग्जैक्टली यही एथिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस हुआ है और बताया गया है व्हाई इंडियन वैल्यूज ऑफ एथिक्स आर मच बेटर एट हैंडलिंग क्लाइमेट चेंज देन वेस्टर्न वैल्यूज. तो यहाँ पर ये इंडियन वे, the sustainable lifestyle, our philosophy, how India is going to focus on individual action at the core of climate responsibility. हमें दूसरों पे responsibility नहीं डालनी है, खुद करना है, right? How traditional practices have to be done, how collective policy must be reflective of individual pro planet choices. अब ये मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट और इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के डिस्कशन से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, बट पूछा कहाँ? GS4 में. सो दिस इज अगेन समथिंग विच we have to understand. अब ये क्वेश्चन देखो, दिस इज अ केस स्टडी ऑफ GS4 डायरेक्टली ऑन वाटर मैनेजमेंट, कि वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही है एंड ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन को हमें कैसे रोकना है. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन वाटर मैनेजमेंट. इसी साल के मेंस पे 4 क्वेश्चन हो गए वाटर मैनेजमेंट पे. अब यहाँ पर ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट फ्रॉम द केस स्टडी, बट इफ यू नो अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट जो हमने स्टेट लेड इनिशिएटिव्स देखे, अगर हमें ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिकमेंडेशंस पता है मिहिर शाह कमेटी की फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमारी हेल्प हो सकती है और हमारे ऑप्शंस वी कैन फ्रेम बेटर कि वाटर गवर्नेंस कैसे की जा सकती है बेटर एक्सेट्रा. अब ये केस स्टडी देखो, दिस इज अगेन अ केस स्टडी फ्रॉम एथिक्स. इसमें क्या क्वेश्चन है? दिस इज अबाउट देम, अ कंपनी दैट इज डेवलपिंग अ न्यू ड्रग, राइट? और उन्हें बोला गया है कि आप जल्दी जल्दी अप्रूवल ले लो. बेसिकली द जिस्ट ऑफ दिस केस स्टडी इज दैट यू आर अ साइंटिस्ट, आपकी कंपनी एक ड्रग बना रही है फॉर अ ग्लोबल पैंडेमिक. अब आपको कहा गया है कि जल्दी जल्दी अप्रूवल ले लो और साइंटिफिक काम मत करो. डोंट ट्रस्ट द सेफ्टी प्रोसीजर, जस्ट टेक द अप्रूवल्स क्विकली सो दैट आफ्टर टेकिंग सच शॉर्टकट्स वी कैन गेट सर्टेन प्रॉफिट्स. तो आप क्या करोगे? अगेन वी हैव टू राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स. इसमें GS3 का क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन आया क्यों? ये क्वेश्चन आया बिकॉज एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड वैक्सीन था वो विड्रॉ कर लिया गया है. तो अगर अब मुझे यहाँ पे फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स पता है और मुझे एस्ट्राजेनेका के कोविड वैक्सीन के विड्रॉल की बात पता है,
तो at least I can give some context in this question and I'll be able to frame better options. तो अब finally, what are the lessons that we learned? That A, it is a bulky paper and GS3 का content जो है वो बाकी पेपर्स में भी बहुत हेल्पफुल है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ GS3 बाकी जगह हेल्पफुल है, GS1 भी बाकी जगह हेल्पफुल है, राइट? तो जो ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हैं, राइट, बिटवीन वेरियस पेपर्स, वो हमें अब खत्म करनी है. वी हैव टू रीड इन अ मोर होलिस्टिक, मोर इंटीग्रेटेड मैनर, एंड डेफिनेटली जो कंटेंट है इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिटेल्ड. अगर आप 2013, 14, 15 के क्वेश्चंस देखोगे, एटलीस्ट मैं कहूँगा 2017 तक के क्वेश्चंस देखोगे, इजी क्वेश्चंस पूछता था यूपीएससी मीन्स में. बट नाउ द पेपर्स आर बिकमिंग मोर डिफिकल्ट. मुझे लगता है यूपीएससी वाले भी थोड़ा बोर हो गए हैं एंड दे आर आस्किंग मोर इन डेप्थ एंड मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस नाउ. तो हमें थोड़ा और डिटेल में जाके थोड़ी ब्रॉड रीडिंग करने की जरूरत है. दिस पेपर ऑफ GS3 आई वुड से अगेन ऑन द मॉडरेट साइड. अगर डेप्थ में अच्छे से पढ़ा है तो ही ये पेपर डुएबल है. अगर ऊपर ऊपर से GS3 पढ़ा है, आई थिंक वेरी डिफिकल्ट पेपर टू सॉल्व. आई होप दिस हेल्प्ड बाय द वे, एंड इट्स बिन 45 मिनट्स. अगर आपने 45 मिनट्स तक ये वीडियो देखी है तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज इतनी पेशेंस जनरली लोगों के पास नहीं होती, बिकॉज इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करना है और थोड़े शॉर्ट्स भी देखने हैं. बट आई एम अज्यूमिंग दैट इफ यू आर वॉचिंग दिस यू आर मोस्ट लाइकली प्रिपेयरिंग फॉर CSE 2025, and I would say that this paper is a good reminder to you to buckle up and read in even more depth going forward. Thank you. Hope this helped. See you next time. I will also be analyzing the papers of GS2 and GS1. Thank you.